Hello, friends. Welcome to yet another interesting episode of Smart Finance with M&A, that is Monish and Anmol. And here in today's episode, we are here to discuss about home loans. But home loan सुन के ये मत सोचना कि हम बात करेंगे एक साल में एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना या होम लोन को जल्दी रीपे करना, उसके ट्रिक्स, क्योंकि हम नहीं करेंगे वो बातें आई एम डैम श्योर आपने काफी फाइनेंस एक्सपर्ट से सुनी है। बट हम इन ऐसे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जो प्रैक्टिकल इश्यूज आप और मैं अक्सर फेस करते हैं जब हम कोई होम लोन लेने जाते हैं। सो किन चीजों का ध्यान हमें रखना है इस जर्नी में, उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अनफिल्टर्ड। हम हमारी स्टोरीज, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सो डू स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू लर्न द मैक्सिमम फ्रॉम दिस। सो होम लोन जब कोई डिसाइड करता है लेना है तो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है सबसे पहले फाइंडिंग द राइट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, और फिर आता है सैंक्शन लेटर। सो मैं पहले तो मोनिश भाई के पास जाऊंगा, आई आस्क हिम कि उन्होंने होम लोन लिया था, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है सैंक्शन लेटर के अराउंड। So, sanction letter is the first document that you essentially get from the banks. Whenever your loan is sanctioned for say X amount, they will give you the sanction letter with hundreds of conditions that आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, then आपको लोन मिलेगा. Now, what I want to discuss is a few key things. When you get a sanction letter, what do you look at? First of all, so first and foremost is the interest rate that you have agreed on with the banks. That is the first thing that you look at. It is generally expressed as the RBI repo rate plus a spread. So if the RBI repo rate is say 5% and the spread is 2.5%, so your interest rate is 7.5%. That is how they express the percentage. यहाँ पर अभी क्या हो गया ना, बैंक्स हैव बिकम वेरी स्मार्ट वेरी रिसेंटली. अभी क्या करते हैं, सपोज मैं हूँ, मुझे होम लोन के लिए जाना है, so I'm an Indian consumer, I will go to multiple banks and I will inquire everywhere. Definitely. They will tell me, I will give you 8.5%, I will give you 8.7%, I will give you 9%, whatever the rate they are communicating, they tell me. And I get a sanction letter of 10% or 10.5%. Okay. So, and this is something that I encountered very in the past. I inquired, what is this? So they said, no sir, once you sign the loan agreement with us, we will give you the final sanction letter, which is the actual interest rate that we agreed on. True. So ये क्यों हुआ है, and why you need to be careful on this? See, if you are paying a processing fee, it is the bank's rightful duty to give you the sanction letter with the interest rate that they had agreed with. अभी क्या हो गया है, इशू क्या होता है, जैसे जॉब ऑफर होती है, एक एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे एक्स ऑफर है, मैं दूसरे के पास जाता हूँ, बोलता एक्स प्लस वाई करके मुझे दे दो. This used to happen to banks as well. People used to leverage that. So these have now become very smart. वो बोलते हैं कि हम sanction letter देंगे नहीं, हम देंगे तो रैक रेट पे देंगे, फाइनल sanction letter हम एंड तक नहीं देंगे. This is what has happened in the system now. Even now, if you go, this is what is prevalent in the market. So what I want to suggest is that, while negotiating with banks, this may happen. You have to push for the sanction letter that you had agreed for. If not, then it is a very big red flag for that institution, wherever you are buying the loan from or getting the loan. Correct. Now let's get on to the things that you look at in the sanction letter. It is the interest rate, which I just explained. It is the tenure of the loan that you agreed on. It is also the disbursement conditions, whether they have not put in some clause with respect to some insurance or some property insurance or some life insurance. Because sometimes banks do that very slyly. They put it in the sanction letter, you sign it, and they tell you यार आपने तो agree किया था. इनफैक्ट मैंने देखा है बहुत लंबी लिस्ट होती है, 40-45 कंडीशंस होते हैं. ये कंडीशन शायद आएगी 25-30वें नंबर पे, जहाँ पे मैं देखूंगा ही नहीं. ठीक है, उस वक्त इंसान को लोन लेने की जरूरत होती है. ही माइट जस्ट इग्नोर कि हाँ भाई ये तो टेक्निकल चीजें लिखी हुई है. Yeah, but you have to be very careful on that. And उसके अलावा what is the rate reset? Rate reset में यानी आपका suppose rate 7.5 है, based on the reduction or increase in RBI repo rate, in what duration your rate will reset. That you have to check. So these are a very few key things that you need to check in the sanction letter as a whole. Now we come to the journey of going through the entire loan process, and I think you can take up the very first step after the sanction letter that comes up. सो स्टैम्प ड्यूटी की जब बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इसके रेट्स आपको स्टेट टू स्टेट चेंज दिखेंगे, अलग अलग रहते हैं. मैंने मेरी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में ली थी, तो मुझे पता है 0.3% of the loan amount is the stamp duty charge.
तो बेसिकली जो लोन एग्रीमेंट आप एंटर कर रहे हो एज अ बोरोवर एंड एज अ लेंडर, उसको आपको रजिस्टर कराना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए आप ये पे करते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्ज आता है वो होता है इंटीमेशन ऑफ चार्ज, इंटीमेशन ऑफ मॉर्गेज बेसिकली। सो जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, नेचुरली बैंक अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करने की कोशिश करेगा। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदेंगे बैंक का, उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, राइट। सो उसको भी आपको इंटीमेट करना पड़ता है टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अगर मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल दूं, तो जब हम कंपनीज के केस में देखते हैं, तो एक अगर आप लोगों ने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, रजिस्टर ऑफ चार्जेस करके होता है। और एमसीए की वेबसाइट पर जब आप किसी कंपनी के डिटेल्स निकालेंगे, तब देखोगे कंपनी के कौन से असेट्स पे चार्ज क्रिएटेड है। सो वैसा ही सिचुएशन हमारे पर्सनल लाइफ में भी होता है। हमारा जो घर हम खरीदते हैं, उसके ऊपर बैंक का चार्ज क्रिएट होता है, विच इज देयर अनलेस एंड अंटिल यू रीपे द एंटायर लोन अमाउंट, राइट। सो ये हो गया। सो ये आपने पे कर दिए, इंटीमेशन ऑफ चार्ज, ये आपने पे किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रैंकिंग चार्जेस। सो नेचुरली जब आप ये लोन एग्रीमेंट के प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, आपको फ्रैंकिंग चार्जेस पे करने होते हैं, व्हिच कैन रेंज अराउंड 5000। मैं आपको हर चीज जो नियर अबाउट अमाउंट है वो बता रहा हूँ। सो 5000 के अराउंड हो गया। सो दीज आर द चार्जेस। सो ये जर्नी के दौरान, लोन एग्रीमेंट क्रिएशन के दौरान तो ये चार्जेस लगते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, आपको जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स बोलते हैं लोन ट्रांसफर कर लो, बैलेंस ट्रांसफर कर लो, वहां पर भी ये चार्जेस फिर से लगेंगे, बिकॉज नेचुरली आपका लेंडर चेंज हो जाएगा, आपके एग्रीमेंट्स चेंज हो जाएंगे, वापस से चार्ज क्रिएट होगा एसेट पे। तो यही चार्जेस आपको कॉपी पेस्ट मारने हैं, बिकॉज ये वापस लगेंगे। सो दैट इज समथिंग एंड एडिशनल यू नीड टू पे। So guys, just to reiterate, around 0.75 to 1% of the loan, which generally comes to stamp duty, notice of intimation or mortgage and franking and probably processing fees. Processing fees तो चलो कभी balance transfer में waive off हो जाती है, लेकिन these three charges are always constant and यहाँ पर probably you will need to undertake a cost benefit analysis with respect to आपको interest rate कितना beneficial मिल रहा है as compared to आप कितना पे कर रहे हो। बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि थोड़े सालों में आप फर्स्ट ईयर में आप शायद कॉस्ट बेयर करोगे कि चलो मेरा इतना सेविंग्स नहीं हो रहा है, बट नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट वापस चेंज हो गया, तो आपको बेनिफिट मिला ही नहीं फॉर दैट सिचुएशन। सो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट फ्यूचर 3-4 इयर्स में आपका रेट क्या रहेगा एंड डू अ प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज का एक्चुअल बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। वेरी ट्रू। तो आई थिंक जो एक्सेल खोल के हमें फाइनेंस एक्सपर्ट्स ज्ञान देते हैं, वो एक्सेल आपको यहाँ यूज करना है। आपके पर्सनल केस में आपको जो कॉस्ट और बेनिफिट डिराइव करने वाले हो, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा बिफोर यू सीधा जंप ऑन टू अ बैलेंस ट्रांसफर, राइट। एग्जैक्टली, राइट। यहाँ पर इनफैक्ट मेरे पास एक प्रो टिप है देने को, ये मेरे पर्सनल केस में मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो अगर आप बैलेंस ट्रांसफर की सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि योर बैंक इज चार्जिंग यू एन X% एंड मार्केट में एक दूसरा कॉम्पिटिंग बैंक इज चार्जिंग क्वाइट लेस टू इट्स न्यू कस्टमर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उस कॉम्पिटिंग बैंक के पास जाना है, उससे कोट लेना है ऑन अ सिंपल ईमेल। उसका एक फ्लायर होगा या ईमेल आप ले लो कि वो अगर आज आप बैलेंस ट्रांसफर करते हो तो आपको क्या रेट देगा एंड मे बी सम अदर बेनिफिट्स व्हाटएवर दे आर ऑफरिंग, से प्रोसेसिंग चार्जेस, वेव ऑफ एंड ऑल, वो आप ले लो और अपने बैंक के पास, एग्जिस्टिंग लेंडर के पास जाइए, तो बताइए कि भाई ये सामने वाला बैंक मुझे ये रेट ऑफर कर रहा है, आर यू इन अ पोजीशन टू डू दैट। 99% ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि वो कर ही देगा। सो इफ यू मैनेज टू डू दैट, आप वो प्रोसेसिंग चार्जेस और वो जितने भी अदर चार्जेस हमने बताए थे, अदर कॉस्ट बताए, वो सारे बचा ही लेंगे एंड आपके लोन का रेट भी कम हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग वेयर यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, राइट। if by off chance banks, so अगर कोई दूसरा बैंक आपको कोट नहीं देता है, बिकॉज आई जस्ट स्पोक ना कि अभी वो लोग सैंक्शन लेटर में इश्यूज कर रहे हैं, वो लोग दे नहीं रहे, राइट। ईमेल्स पे भी वो लोग ईमेल्स पे वो लोग कभी-कभी दे देते हैं, राइट। ईमेल्स पे दे डू गिव समटाइम्स, बट सैंक्शन लेटर पे नहीं देते। तो even if you don't have a written communication, just go to the bank, talk to them. Something will come up and कुछ नहीं होता है तो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांग लो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मांग लो, बोलो कि मैं बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ, थ्रेटन कर दो, तभी भी काम हो जाएगा आपका। ये भी मैंने किया हुआ है। सो this is just another pro tip that then the entire process goes to something called as a retention team. They take a request, अरे नहीं आप रुक जाइए, then retention team calls you, sir आप क्यों जा रहे हो, क्या इशू, and then the entire thing happens. राइट। आई थिंक यस, वेरी ट्रू। मेरे को याद है जब मेरे बैंकर को मैंने बताया था, मैंने कुछ नहीं, कंप्यूटिंग बैंक का एक फ्लायर था, मेल का आया हुआ था, वो फ्लायर दिखाया था, मुझे नहीं पता मुझे वही रेट देता है या नहीं, बट वो नए पर जो कस्टमर्स उनको बहुत कम रेट दे रहा था।
मैंने बताया उनको, उन्होंने कहा सर हमें 3 या 4 घंटे दीजिए, we'll get back to you, और वो 3-4 घंटे में मेरा काम हो गया. I was offered the same rate by my bank, so I saved a lot there. Exactly. True. I think this is going to prove quite helpful to our viewers. So guys, इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज इस तरह के प्रैक्टिकल टिप्स हम आपके लिए लाते रहते हैं, राइट? सो ये बात हो गई सारे वेरियस कॉस्ट की जो लोन लेने के दौरान आपको लगते हैं, आपको पे करने पड़ते हैं. अगर इसके बाद मैं बात करूं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज अपसेलिंग. सो इस लोन के प्रोसेस में यू विल सी कि बैंक के जो अदर विंग्स है वो सडनली बहुत एक्टिव हो जाते हैं. दे स्टार्ट अपसेलिंग यू देयर सर्विसेज, लाइक इंश्योरेंस हो गया, you know, different comprehensive insurance policies, they'll come to you and they try to sell you. So क्या ये मैंडेटरी है कि मैं उसी बैंक से वो इंश्योरेंस पॉलिसी लूं? So नहीं. So no, the loan process is entirely different from buying insurance, be it property insurance, be it life insurance. What these banks are trying to do is create an additional security over and above the charge they already have. Right, and in doing so they want to earn more money. तो वो upsell करते हैं. वो बोलते हैं कि अरे तुम हमसे ही ले लो इंश्योरेंस, हम आपसे इतना पैसा लेंगे एंड विल गिव यू द इंश्योरेंस. बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट मैंडेटरी. यू कैन टेल देम नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू बाय एन इंश्योरेंस, एंड इफ यू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, if you don't have a life insurance, it's okay. Like it's not a mandatory requirement for you to have a life insurance because they already have a charge on the asset. Correct. But if you do have a life insurance already, or you can always go and take it from outside because it's a good thing to have a life insurance or something like that. But it is not mandatory to get it is not a mandatory precondition to have an insurance from the bank for the disbursement, which they generally treat it that way, and they also put it in the sanction letter which I had just mentioned when we were talking about the sanction letter. So you have to be wary of such banks and you have to take a stand that boss, I'm not going to buy an insurance from you. True. तो यहाँ पर मेरे what sorry, but because what they generally do over here is आपका 70 lakhs का लोन है, 5 लाख का इंश्योरेंस है, हाइपोथेटिकली 5 लाख का इंश्योरेंस भी आपके लोन अमाउंट में ऐड करते हैं, एंड 75 लाख का लोन हो गया आपका, और सडनली यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन 75 lakhs and you won't even know. And this is a practical experience I have seen. I've learned from someone that this has happened to them, and it's a very bad decision because you end up paying interest and it is almost double of the premium amount. So आप समझ लीजिए वो चीज. Right. I think I can relate to this because मुझे अब याद आ रहा है तेरे केस में मैंने बैंक को बहुत पहले जब मेरा सैंक्शन का प्रोसेस चल रहा था तभी ये क्लैरिफाई कर दिया था कि मैं उनसे तो कोई पॉलिसी नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज आई हैड अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, मेरे लोन अमाउंट से थोड़ा ज्यादा थी, तो मैंने उन्हें कहा था मेरे पास वो है, आपसे एडिशनल पॉलिसी स्पेसिफिकली इस लोन के डिस्बर्समेंट के लिए तो मैं नहीं लेने वाला हूँ. इफ दे आर गुड टू गो आई कैन कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, वो एक चीज है. सेकंड चीज मुझे याद है जैसे जैसे डिस्बर्समेंट की डेट पास आ रही थी, द एजेंट वाज बिहाइंड मी टू सेल अनदर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जहां वो बोल रहा था इसमें आपका प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हो जाएगा, एंड दैट वाज फॉर 5 years. तो मैंने पूछा व्हाई 5 years, प्रॉपर्टी तो हमेशा रहने वाली है मेरे पास. तो दे वाज लाइक नहीं सर, आपको ना ये देखिए सैलरीड पर्सन जनरली 5 साल में अपना लोन रीपे करता है, तो हम इसको इसलिए इंश्योर कर रहे हैं सो दैट अगर आपके घर में ड्यू टू फायर और ड्यू टू एनी अदर नेचुरल कैलामिटी कुछ होता है, सो आपका लोन रीपे हो जाएगा, यू डोंट नीड टू डू दैट. वो आपको इस तरह बोलेगा यू डोंट नीड टू डू दैट, वो हो गया, आपको भले कुछ हाथ में नहीं मिलने वाला, यू डोंट नीड टू डू दैट. एंड उसके अलावा अगर आपकी जॉब चली जाती है या आपको कुछ हो जाता है तो भी प्रिंसिपल रीपे हो जाएगा, यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. तो मैंने उससे सबसे पहले कहा टर्म इंश्योरेंस मेरे पास है, सो मेरे को कुछ हो जाता है उसकी चिंता मुझे नहीं है. जॉब अगर कुछ होता है तो दे शुडंट बी कंसर्न्ड अबाउट इट बिकॉज दे हैव अ चार्ज ऑन माय असेट. एंड फायर इंश्योरेंस एंड ऑल इज समथिंग व्हिच आई डोंट फाइंड इट वर्दी इनफ, और 5 साल के लिए तो मेक्स नो सेंस. वो सिर्फ अपना फायर इंश्योरेंस सेफगार्ड करने के लिए करेक्ट, वो बैंक सिर्फ अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए. एंड सेकंड थिंग एज वी सेड अपसेलिंग, तो वहां पे मुझे कहा गया था कि आपका 1000 या 1500 रुपीस आपके मंथली EMI में जोड़ दिया जाएगा, सो व्हिच आई थिंक रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. यस कि वो मेरा लोन अमाउंट बच जाएगा. हाँ, तो आप बोलोगे यार 1500 रुपए में अगर मेरा लोन माफ हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं. देन यू अंडरस्टैंड कर इसके पीछे तो इतना बड़ा हिडन कॉस्ट. करे वो कैलकुलेशन को इतना छोटा करके मंथली ले आते हैं कि आपको बहुत छोटा सा नॉमिनल अमाउंट लगता है. एक और चीज बात करनी थी कि जब हम लोन डिस्बर्समेंट कंप्लीट हो चुका होता है, सो आपको बैंक से एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेना होता है. बेसिकली आप बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स देते हो. इनफैक्ट आपका जो घर का ओरिजिनल परचेज एग्रीमेंट होता है वही बैंक के पास होता है. So आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, एक साइन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, so that you know what are the documents to be taken back
from the bank when you repay the loan, right? Perfect. Yeah, agreed. So that is also something to be taken care of, and I think this were all these points which you will need to take care of when you take a home loan, right? So guys, this was it for today's video. We just wanted to bring you some practical aspects, in and around home loan, because you will see a lot of mathematics on videos, but these aspects that I have faced personally, Anmol has faced personally, and probably you will also face personally sometime in the future, or you're planning to do, or you already faced, and you may relate to this. So I think I just hope that this video is helpful, and this is all from our side for today. Yes, guys. So when you are at a juncture where you are taking such a big decision in life of buying a home, do ensure to take care of these points, because I'm damn sure these are going to prove helpful to you. And it is very important to be very smart in all these transactions and decision making. बाकी अगर इस वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, हमें बताइए कमेंट्स के थ्रू. डू शेयर विद अस व्हाट वुड यू लाइक टू वॉच ऑन आवर चैनल इन द कमिंग फ्यूचर, बिकॉज वी ऑल नो नाउ you learn, we learn, and together we grow. So thank you guys for all your love and support. Thank you guys.